السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ BPSC TRE 4 کے لیے اردو کا یہ کلاس نمبر 58 ہے۔ آج کے کلاس میں ہم اور آپ اردو کے رومانی نثر نگار پڑھنے والے ہیں۔ اردو کے رومانی نثر نگار کا تھیوری کل کے کلاس میں پڑھا تھا، کلاس نمبر 57 میں پڑھا تھا۔ آج اردو کے رومانی نثر نگار کے چنندہ سوالات آپ کی خدمت۔ جی تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو کے رومانی نثر نگار آج کے کلاس میں اسی کے معروضی سوالات پڑھیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک AR ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ اردو کے رومانی نثر نگار کے جو معروضی سوالات ہیں اس کا ٹیسٹ آلریڈی ہماری اپلیکیشن پر لگ چکا ہے، اور آپ کبھی بھی اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں۔ ایک بار ہم TRE 4 کا کورس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آج ہی AR ڈیجیٹل کے اپلیکیشن سے جڑ جائیے، جہاں اردو ادب اور اردو قواعد دونوں کے کلاسز ملیں گے۔ BPSC کے عین نصاب کے مطابق، یعنی NCERT اور SCERT دونوں کے مطابق آپ کی تیاری ہوگی۔ ہر کلاس کی پہلے تھیوری، پھر معروضی سوالات، تھیوری اور معروضی سوالات کا آپ کو PDF دیا جائے گا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ PDF کا آپ زیروکس نکال پائیں گے، PDF کو سیو کر پائیں گے، اور ہر کلاس کا انلیمیٹڈ ٹیسٹ بھی آپ کو ملے گا۔ آخر میں آپ سب کو ماسٹر نوٹ بھی دیا جائے گا۔ آپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس QR کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں، یا آپ کو اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آپ اس نمبر پہ 748 72 348 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیرکف شروع کرتے ہیں اور آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تمام ساتھیوں کا، نئے پرانے ساتھیوں کا استقبال، اور تمام ساتھیوں کا خیر مقدم۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام۔ سر سید اور حالی کی اصلاحی تحریک کے بعد اردو ادب میں نئے رجحان کو مقبولیت حاصل ہوئی، جسے کہا جاتا ہے شعر لطیف، ادب لطیف، نثر لطیف، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ آج کے کلاس کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ سر سید احمد خان اور حالی کی اصلاحی تحریک کے بعد اردو ادب میں ایک نئے رجحان کو مقبولیت حاصل ہوئی، جسے ادب لطیف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ادب لطیف کہا جاتا ہے۔ تو 1 نمبر سوال کا B آپشن آپ کا رائٹ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، میر ناصر علی دہلوی کہاں پیدا ہوئے؟ تو دیکھیں ہماری زبان سے نکل گیا ہے، علی گڑھ میں، لکھنؤ میں، دہلی میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ میر ناصر علی کی پیدائش ہوئی تھی سن 1847 میں، اور سارے ساتھی صحیح جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے زبان سے آلریڈی نکل گیا ہے۔ میر ناصر علی کی پیدائش سن 1847 میں دہلی میں ہوئی۔ 2 نمبر کا C آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، میر ناصر علی کی ادبی زندگی کا آغاز درج ذیل میں کس رسالہ سے ہوا؟ 13ویں صدی، 14ویں صدی، 15ویں صدی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تیسرا سوال ہماری اسکرین پر، جی میر ناصر علی کی پیدائش ابھی دیکھا آپ نے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے سن 1847 میں۔ کب؟ سن 1847 میں۔ اور دوستو، انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا 13ویں صدی رسالے سے۔ کس رسالے سے؟ 13ویں صدی رسالے سے۔ اور یہ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا آگرہ سے۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ آگرہ سے جاری کیا تھا۔ لیکن دوستو، یہ 13ویں صدی کا جو رسالہ ہے ادبی زندگی کا، تو آغاز اس رسالے سے انہوں نے کیا، لیکن بعد میں اسی رسالے کا نام انہوں نے زمانہ رکھا، اور زمانہ کے نام سے اسی رسالے کو انہوں نے شائع کیا۔ کس نے؟ تو دوستو میر ناصر علی نے۔ کس نے؟ میر ناصر علی نے۔ چوتھا سوال ہے، میر ناصر علی نے دہلی سے درج ذیل میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ فسانہ ایام، رسالہ ناصری، زمانہ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر، کیا صحیح جواب ہوگا؟ تو دوستو، میر ناصر علی نے دہلی سے فسانہ ایام اور رسالہ ناصری، ان دونوں کو انہوں نے دہلی سے جاری کیا تھا۔ تو D آپشن آپ کا، یعنی حسب بالا میں ایک سے زائد، اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ جبکہ زمانہ جو ہے دوستو، 13ویں صدی جو رسالہ تھا
इसी रिसाले का दूसरा नाम था ज़माना। किस रिसाले का? तो 13वीं सदी, जिससे मीर नासिर अली ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 का ई क्यों दे रहे हैं? 4 का ई गलत जवाब है। 4 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर आंसर की में भी डी दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि बाद में कमेंट आता है सर थोड़ा जूम कीजिएगा, थोड़ा और जूम करता हूँ। 5वां सवाल, मीर नासिर अली ने अपना ज़ाती प्रेस मतबा नासरी कब कायम किया? 1905 में, 1907 में, 1908 में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? मीर नासिर अली ने अपना ज़ाती प्रेस मतबा नासरी के नाम से कायम किया था और सन 1908 में कायम किया था। जी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मीर नासिर अली ने अपने ज़ाती प्रेस मतबा नासरी से एक रिसाला निकाला था और रिसाले का नाम था सलाए आम। क्या नाम था? सलाए आम इस रिसाले का नाम था। 6ठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है? मीर नासिर अली के मज़ामीन का इंतखाब मकामात नासरी के नाम से किसने शाये करवाया? सैयद इफ्तिखार अली नासरी, सैयद अंसार अली नासरी, सैयद अंजर अली नासरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 6ठा सवाल आपकी स्क्रीन पर, मीर नासिर अली ने जो रिसाले जारी किए उनके बारे में तो हमने बताया, लेकिन मीर नासिर अली के मज़ामीन का जो इंतखाब है ये मकामात नासरी के नाम से शाये हुआ था और इनके पोते हैं और उनका नाम है सैयद अंसार अली। क्या नाम है? सैयद अंसार अली, जो मीर नासिर अली के पोते थे जी, इन्होंने शाये कराया था मज़ामीन का इंतखाब मकामात नासरी के नाम से सन 1969 में। कब? सन 1969 में। आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, मेहदी इफ़ादी जिनका असल नाम मेहदी हसन था अपने नाम के साथ क्या लिखते थे? इफ़ादियुल इक़्तिसादी, इफ़ादी, एतमादुल इक़्तिसादी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जी, मेहदी इफ़ादी जिनका असल नाम मेहदी हसन था, मेहदी हसन था, अपने नाम के साथ क्या लिखा करते थे? तो दोस्तों इफ़ादियुल इक़्तिसादी लिखा करते थे। 7 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है, मेहदी इफ़ादी की तसनीफ़ इफ़ादाते मेहदी दर्ज झेल में किसका मजमुआ है? इफ़ादाते मेहदी दर्ज झेल में किसका मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ, इंशाइयों का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। मेहदी इफ़ादी की तसनीफ़ इफ़ादाते मेहदी किस चीज़ का मजमुआ है? 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मज़ामीन का मजमुआ है इफ़ादाते मेहदी। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना है, अपने हिस्से की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हिस्से की तैयारी आपको कोई दूसरा करके नहीं देगा। अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए। खुद जलाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूरी है, जब मेहनत करेंगे यकीनन कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हाँ मेरा निकल जाएगा तो यकीनन मुश्किल होगा। यकीनन क्या होगा? मुश्किल होगा। टीआरई 3 में मैंने बच्चों को बहुत बार कहा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। असल में होता क्या है, आज के ज़माने में बच्चे सोचते हैं कि जो सर का फीस ज़्यादा है ना वो सर अच्छा पढ़ाते होंगे, है ना, या जो सर जो है ज़्यादा फीस लेते हैं तो यकीनन उनका कोर्स अच्छा होगा। हम कम रेट में देते हैं, कम फीस हमारी है, मामूली फीस है, तो लोग सोचते हैं क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, खालिस एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, कोई मिलावट नहीं मिलेगा। और जब हम एनसीईआरटी हमारा मुकम्मल होगा तब हम आपको कह के बोलेंगे कि हम एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बात आपको मिलेगी कि हम टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, है ना, पॉइंट आपको देते हैं, शॉर्ट देते हैं, आपके जहन को उलझाते नहीं है कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना नहीं। बहुत ज़्यादा मवाद दे देना भी बच्चे उलझ जाते हैं, है ना। शॉर्ट हो, जामे हो, जहाँ से सवाल बनते हो, अगर उस नोट को आपने पकड़ लिया तो यकीन मानिए आपकी कामयाबी
यकीनी हो जाएगी। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप हिचकिचाइए मत, आप सोचिए मत कि लेना है नहीं लेना है, आज ही कोर्स ले लीजिए। यकीन दिलाता हूं, तशफ़ी दिलाता हूं कि आपको दोस्तों इत्मीनान बख्श और तशफ़ी बख्श तैयारी कराऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ आपको भी मेहनत करना है। नवा सवाल, मेहदी इफ़ादी की तसनीफ़ सहीफ़ा-ए मोहब्बत दर्ज झेल में किसका मजमुआ है? खुतूत का, इंशाइयों का, मज़ामीन का, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो मेहदी इफ़ादी की जो तसनीफ़ है सहीफ़ा-ए मोहब्बत खुतूत का मजमुआ है, इस वजह से 9 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेहदी इफ़ादी के ने अपने मजमून उर्दू लिटरेचर के अनासिरे खमसा में किनको किनको उर्दू अदब के अनासिरे खमसा कहा है या करार दिया है? सर सैयद नज़ीर अहमद, मीर तकी मीर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद खान, नज़ीर अहमद, हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी, सर सैयद सज्जाद हैदर यलदरम, हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नौमानी, एक से ज़ायद या फिर इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप सबसे सही जवाब चाहूंगा। सर आपका मवाद पढ़ रहे हैं, वनली कोई बुक नहीं लिया है अभी तक, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। ठीक है, आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। चलिए, तो मेहदी इफ़ादी ने अपने मजमून उर्दू लिटरेचर के अनासिरे खमसा में किनको किनको उर्दू अदब के अनासिरे खमसा करार दिया है या फिर अनासिरे खमसा कहा है? कल के क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया था। सर सैयद अहमद खां, अब देखिए सर सैयद अहमद खान, नज़ीर अहमद, मीर तकी मीर का नाम जैसे आया यहाँ पर ये कट जाएगा। सर सैयद अहमद खान, सज्जाद हैदर यलदरम जैसे आया ये भी कट जाएगा। सर सैयद अहमद खान, नज़ीर अहमद, हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नौमानी, इन 5 लोगों को उर्दू लिटरेचर के अनासिरे खमसा मेहदी इफ़ादियुल इक़्तिसादी, जिनका असल नाम मेहदी हसन था, इन्होंने करार दिया है। इस वजह से 10 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। सैयद अली सज्जाद हैदर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, लखनऊ में, लाहौर में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। सैयद अली सज्जाद हैदर जी, इनकी पैदाइश के बारे में NCERT कहता है कि इनकी पैदाइश 1880 या फिर कहता है दोस्तों 82। अब बीच में 81 है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि NCERT जब कहता है तो मैं वो आपके सामने रख देता हूं। आप खुद इस काबिल हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सैयद अली सज्जाद हैदर जी सन 1880 या 82 में दोस्तों कहाँ पैदा हुए थे? नाहटोर में। कहाँ पैदा हुए थे? नाहटोर, और ज़िला है बिजनौर। नाहटोर ज़िला बिजनौर में सैयद अली सज्जाद हैदर पैदा हुए थे। और दोस्तों नाहटोर ज़िला बिजनौर का नाम कहीं नहीं दिख रहा है, इस वजह से ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनके इंतकाल की बात की जाए कि इनकी वफ़ात कहाँ हुई, इनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो इनका इंतकाल हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? सन 1943 में। पैदा हुए थे नाहटोर ज़िला बिजनौर 1880 या 82 में, लेकिन इंतकाल हुआ था लखनऊ में सन 1943 में।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है, सैयद अली सज्जाद हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या मुकर्रर हुए, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो हमने आपको कल ही के क्लास में बताया था, क्या बताया था कि सर सैयद अहमद खान ने सन 1875 में एक कॉलेज कायम किया था। यही कॉलेज तरक्की करते हुए 2 साल के बाद सन 1878 में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज बना, ठीक है, 1878 में बना। लेकिन रफ्ता रफ्ता सर सैयद अहमद खान की वफात के बाद सन 1920 में, कब, सन 1920 में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सन 1920 में बना और 1920 में ही सैयद अली सज्जाद हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे, है ना। 12 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट होगा और आप लोगों ने भी सही दिया है, कुछ साथियों ने गलत दिया है, थोड़ा सही कीजिए, ध्यान रखिए। 13 नंबर, सैयद अली सज्जाद हैदर यलदरम की तसनीफ पुराना ख्वाब और मिर्जा दर्ज झेल में ड्रामा है, अफसाना है, नाविल है, एक से जायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों पुराना ख्वाब और मिर्जा सैयद अली सज्जाद हैदर यलदरम, जिनकी पैदाइश नाहटोर ज़िला बिजनौर में सन 1880 या 82 को ही, जिनका इंतकाल सन 1943 को लखनऊ में हुआ, उनकी तसनीफ पुराना ख्वाब और मिर्जा ड्रामा है। तो ए ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, नियाज मोहम्मद खां यानी नियाज फतेहपुरी का निगार दर्ज झेल में क्या है, अखबार है, रिसाला है, अफसाना है, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। नियाज फतेहपुरी की बात करें तो दोस्तों नियाज फतेहपुरी की पैदाइश फतेहपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? फतेहपुर में हुई थी और इनकी पैदाइश हुई थी सन 1884 ईस्वी में। और दोस्तों इन्होंने भोपाल से, कहाँ से, कल के क्लास में मैंने बताया भी था, भोपाल से एक रिसाला जारी किया था। क्या जारी किया था? भोपाल से एक रिसाला जारी किया था और उस रिसाले का नाम था निगार, है ना। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी उम्र में ये पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार करने के बाद ये रिसाला यानी निगार जो है पाकिस्तान के कराची से शाये होने लगा था। 15 नंबर सवाल है, नियाज फतेहपुरी की तसनीफ एक शायर का अंजाम क्या है? दास्तान है, नाविल है, अफसाना है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने जो बताया था TRE 3 में पूछा गया एक सवाल था कि जैदपुर का पीर या जैदपुर का मुरीद, ऐसा ही कुछ, जैदपुर का पीर या मुरीद, ऐसा ही सवाल था। और इस सवाल को BPSC ने फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया है और ये सवाल है मुरीदपुर का पीर। क्या है? मुरीदपुर का पीर, ये असल ऑप्शन है, असल सवाल है ना। तो दोस्तों इस सवाल को BPSC ने क्या किया? डिलीट कर दिया और हमारे मास्टर नोट में मिलेगा, हमारे पढ़ाए हुए सबक में मिलेगा, है ना। तो इसने दिया जैदपुर का पीर जबकि असल में है मुरीदपुर का पीर। बताइए कमेंट करके मुरीदपुर का पीर क्या है, किनका है। खैर 15 नंबर सवाल, एक शायर का अंजाम, एक शायर का अंजाम अफसाना है। 15 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये तवील अफसाना है नियाज फतेहपुरी का। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये सन 1913 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1913 में शाये हुआ। और इनके हमने कल पढ़ाया था बहुत सारा, जैसे इनकी तसनीफ़ात शहाब की सरगुज़िश्त, नाविल है, निगारिस्तान, जमालिस्तान, निकाब उड़ जाने के बाद, ये सब अफसानों और इंशाइयों के मजमूए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया था थ्योरी क्लास में, अगर आप नहीं थे तो ज़रूर देखा कीजिएगा। नियाज फतेहपुरी की मारूफ किताब अर्ज़े नगमा क्या है? शेरी मजमुआ, इंशाइयों का मजमुआ, खाकों का मजमुआ, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। अर्ज़े नगमा रविंद्रनाथ टैगोर की किताब, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है गीतांजलि। गीतांजलि
इसी का तर्जमा किया था अर्ज़ नगमा के नाम से। तो शेरी मजमुआ नहीं है, इंशाइयों का मजमुआ नहीं है और खाकों का भी मजमुआ नहीं है, बल्कि अर्ज़ नगमा टैगोर की किताब गीतांजलि का तर्जमा है, ट्रांसलेशन है। इस वजह से हस्ब बाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे साथी बी ऑप्शन इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर दे रहे हैं, जो कि गलत जवाब है। 17 नंबर सवाल है, सज्जाद अंसारी को अदब लतीफ़ का कहा जाता है? फ़लसफ़ी कहा जाता है, मेमार कहा जाता है, नसरनिगार कहा जाता है, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत सारे साथी जो है ए ऑप्शन दे रहे हैं कि सज्जाद अंसारी को अदब लतीफ़ का क्या कहा जाता है? जी, सज्जाद अंसारी जो है दोस्तों, इनकी पैदाइश हुई थी यूपी के बाराबंकी में। कहाँ पे? यूपी के बाराबंकी में इनकी पैदाइश हुई थी सन 1884 ईस्वी में, और इनको अदब लतीफ़ का फ़लसफ़ी कहा जाता है। तो 17 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि सज्जाद अंसारी को अदब लतीफ़ का क्या कहा जाता है? फ़लसफ़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सज्जाद अंसारी के मजमूए महशर ख़याल में क्या क्या शामिल है? मज़ामीन, नज़्म, नस्र, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सज्जाद अंसारी के मजमुआ महशर ख़याल में क्या क्या शामिल है? जी, तो इनके जो साथियों महशर ख़याल है, हमने बताया था कि इनका बाज़ाब्ता इनकी ज़िंदगी में जी ये जो मजमुआ कुछ शाये नहीं हुआ, बल्कि ये महशर ख़याल उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। इसमें उनके मज़ामीन, उनके नज़्म, उनकी नस्र सब के सब शामिल हैं। इस वजह से डी ऑप्शन इस सवाल का 18 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाम अहमद अकबराबादी का मुकम्मल नाम? लुत्फ़ुर रहमान, लतीफ़ुद्दीन अहमद, लईक़ुद्दीन अहमद, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लाम अहमद अकबराबादी की पैदाइश हुई थी सन 1885 में, और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश आगरा में हुई थी सन 1885 को, और इनका असल नाम था लतीफ़ुद्दीन अहमद। इस वजह से बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। 20वां सवाल है, सुल्तान हैदर जोश कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, बिजनौर में, बदायूं में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। सुल्तान हैदर जोश की पैदाइश सन 1886 को, कहाँ पे? सन 1886 को हुई थी, और इनकी पैदाइश हुई थी बदायूं में। इस वजह से सी ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का। लेकिन इनका इंतकाल हुआ था अलीगढ़ में। कहाँ पे इंतकाल हुआ था? अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था सन 1953 में। अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था सन 1953 में। अगला सवाल 21 नंबर है। 21 नंबर सवाल है, थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दर्ज झेल तसनीफ़ात की निशानदेही कीजिए कि किन की है? इंशाए लतीफ़, नगमात, गीत और ज्ञान, अदबी तअस्सुरात, नक़दे अदब, मोहब्बत का अफसाना और मजनू के अरमा। लाम अहमद अकबराबादी, सुल्तान हैदर जोश, काजी अब्दुल गफ्फार, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 21वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल तसनीफ़ात किन की है? तो दर्ज झेल तसनीफ़ात लतीफ़ुद्दीन अहमद, जिन्हें आप लाम अहमद अकबराबादी के नाम से जानते हैं, जिनकी पैदाइश सन 1885 में अकबराबाद आगरा में इनकी पैदाइश हुई। इन्हीं की सारी तसनीफ़ है, इंशाए लतीफ़, नगमात, गीत और ज्ञान, अदबी तअस्सुरात, नक़दे अदब, मोहब्बत का अफसाना और मजनू के अरमा। दिल के अरमा नहीं, मजनू के अरमा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 22 नंबर सवाल है, सुल्तान हैदर जोश की तसनीफ़ अफ़साने जोश, फ़िक्रे जोश क्या है? नाविलों के मजमूए, अफसानों के मजमूए, मज़ामीन के मजमूए, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? सुल्तान हैदर जोश की तसनीफ़ अफ़साने जोश, फ़िक्रे जोश क्या है? जी, 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो ये अफसानों के मजमूए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि काजी अब्दुल गफ्फार अलीगढ़ में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के खाली जगह मुकर्रर हुए। क्या मुकर्रर हुए?
सदर मुकर्रर हुए, नाजिब मुकर्रर हुए, जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होना चाहिए? तो दोस्तों काजी अब्दुल गफ्फार साहब अलीगढ़ में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे और काजी अब्दुल गफ्फार साहब की पैदाइश हुई थी सन 1889 में और इनकी पैदाइश हुई थी मुरादाबाद यूपी। जी, कहाँ पैदा हुए थे? मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काजी अब्दुल गफ्फार कहाँ पैदा हुए? तो हमने आपको बता ही दिया कि मुरादाबाद में काजी अब्दुल गफ्फार साहब सन 1889 में पैदा हुए थे। तो 24 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, काजी अब्दुल गफ्फार ने कलकत्ता से कौन सा अखबार निकाला था? हमदर्द, जमहूर, पयाम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। काजी अब्दुल गफ्फार साहब ने कलकत्ता से कौन सा अखबार निकाला था? देखिए, काजी अब्दुल गफ्फार ने कलकत्ता से जो निकाला था वो था जमहूर, और हमदर्द जो आप देख रहे हैं ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। किनका है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। इसमें इन्होंने मुलाजमत के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी इसमें इन्होंने क्या किया? काम किया। और जबकि पयाम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने ही हैदराबाद से निकाला था। कहाँ से निकाला था? हैदराबाद से काजी अब्दुल गफ्फार साहब ने निकाला था क्या? पयाम। और दोस्तों इनके बारे में कल ही पढ़ा था, एक पॉइंट बहुत मशहूर है ना? क्या पढ़ा था कि लैला के खुतूत की, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, लैला के खुतूत और मजनू की डायरी, लैला के खुतूत और मजनू की डायरी, लैला के खुतूत और मजनू की डायरी से काजी अब्दुल गफ्फार साहब को बहुत शोहरत व मकबूलियत अता हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर है, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था? देखिए, अगर लंबा लंबा क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप लोग क्लास के आखिर में कीजिएगा। मजनू गोरखपुरी का असल नाम मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सिद्दीक, अहमद सिद्दीक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल। तो दोस्तों मजनू गोरखपुरी का असल नाम था अहमद सिद्दीक, और मजनू गोरखपुरी सन 1904 में ज़िला बस्ती में, कहाँ पे? ज़िला बस्ती यूपी में एक गांव है पलड़ा, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। तो सी ऑप्शन, 1904 में पैदा हुए थे बस्ती जिला में पलड़ा गांव में। असल नाम है अहमद सिद्दीक। मजनू गोरखपुरी ने किस जबान में एमए की सनद हासिल की? अंग्रेजी जबान, उर्दू जबान, फारसी जबान, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। मजनू गोरखपुरी ने अंग्रेजी जबान में एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। 27 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद सादिक नाम नहीं है भाई, कल ही तो पढ़ाया हूँ। अहमद सिद्दीक असल नाम है, याद रखिएगा। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। क्या नाम है? अहमद सिद्दीक। अब देखिए, ये मजनू गोरखपुरी है और एक है फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? गोरखपुरी। कमेंट करके बताइए फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। तो यहाँ मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक और इनकी पैदाइश 1904 बस्ती पलड़ा। आगे बढ़ते हैं। 28 जैदी का हश्र मजनू गोरखपुरी का नाविल है, अफसाना है, कसीदा है, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैदी का हश्र मजनू गोरखपुरी के पहले तवील अफसाने का नाम है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल, मजनू गोरखपुरी की तसनीफ की निशानदेही कीजिए। समन पोश, नक्शे नाहिद, ख्वाबो ख्याल, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। मजनू गोरखपुरी की तसनीफ की निशानदेही करना है। समन पोश, नक्शे नाहिद, ख्वाबो ख्याल। तो दोस्तों मजनू गोरखपुरी की ये तीनों की तीनों तसानीफ हैं, है ना? और जबकि ख्वाबो ख्याल की अगर बात की जाए तो कई लोगों का कई चीज़ है, ठीक है? तो जिसमें मजनू गोरखपुरी का अफसाना है, मजनू गोरखपुरी का क्या है? अफसाना है। और ख्वाबो ख्याल मीर तकी मीर और मीर असर, इन दोनों, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मीर तकी मीर और मीर असर, इन दोनों की मसनवियाँ हैं। इन दोनों की क्या है दोस्तों? लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट रुक जाइए। मीर तकी मीर और मीर असर दोनों की मसनवियाँ हैं ख्वाबो ख्याल। और दोस्तों ख्वाबो ख्याल अफसानवी मजमुआ है किनका?
प्रेम चंद जी का, प्रेम चंद का। मजनू गोरखपुरी का अफसाना है ख्वाब ख्याल। प्रेम चंद का अफसानवी मजमुआ है। मीर तकी मीर और मीर असर इन दोनों की मसनवियाँ हैं ख्वाब ख्याल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 29 नंबर का डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों तसानीफ मजनू गोरखपुरी की ही तसानीफ हैं। अगला सवाल क्या है, वहीदुद्दीन सलीम ने दर्ज झेल में किसको कायम किया? अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन सोसाइटी, अंजुमन मुतरजमीन, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 30वां सवाल आपकी स्क्रीन पर कल मैंने बताया भी था। तो वहीदुद्दीन सलीम ने दोस्तों अंजुमन मुतरजमीन को कायम किया था और इसका मकसद था अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में तर्जमा करना, अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में ट्रांसलेशन करना, मुंतकिल करना। सैयद सुलेमान नदवी साहब कहाँ पैदा हुए? दसना में, नवादा में, रांची में, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। सैयद सुलेमान नदवी साहब दसना बिहार में जी सन 1884 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी? तो दसना बिहार शरीफ में इनकी पैदाइश हुई 1884 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर। सैयद सुलेमान नदवी की सबसे मारूफ किताब खय्याम किस ज़बान में? अरबी में है, उर्दू में है, फारसी में है, एक से जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर सवाल है। तो दोस्तों खय्याम जो किताब है ये फारसी ज़बान में है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 33वां सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या था? मज़ामीन, इस्लामी तारीख़, इंशाइया, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 33। आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे आखिर में कीजिएगा, सारे साथियों के सवालात के जवाब मुकम्मल देने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान क्या था? तो ख़ास मैदान था इस्लामी तारीख़। अगला सवाल क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद, फिरोज़ बख्त, अफरोज़ बख्त? 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम था मोहिउद्दीन अहमद। क्या नाम था? मोहिउद्दीन अहमद, जबकि तारीख़ी नाम था फिरोज़ बख्त। पैदा हुए थे सन 1888 को मक्कतुल मुकर्रमा में, मक्का मुकर्रमा में। अगला सवाल 34 नंबर। 35 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए 1936, 1937, 1938, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों एनसीईआरटी के बुक के मुताबिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के जो सदर मुंतखब हुए वो सन 1939 में। कब? सन 1939 में, है ना। 1939 से 1946 तक कांग्रेस के सदर रहे और 1939 में सदर मुंतखब हुए। 1939 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग एमडी शाहिद साहब 1935 दे रहे हैं, मैं इनसे भी इत्तेफाक करता हूं 1935, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में लिखने की वजह से मिस हुआ हो या जो भी चीज़ हो। पहली बार 1935 में और हो सकता है दूसरी बार 1939 में। ये सवाल को आपको देखने की ज़रूरत है, इस पर मैं भी नजरसानी करूँगा। अगला सवाल 36 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ इंडिया विंस फ्रीडम का उर्दू तर्जमा किस नाम से शाये हुआ? कारवान ख्याल, गुबार खातिर, हमारी आज़ादी, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंडिया विंस फ्रीडम का उर्दू तर्जमा किस नाम से शाये हुआ? 36वां सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम का तर्जमा हमारी आज़ादी के नाम से शाये हुआ। तो 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि अब्दुल माजिद दरियाबादी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, बाराबंकी में, बिजनौर में, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 37वां सवाल, तो दोस्तों अब्दुल माजिद दरियाबादी सन 1892 में पैदा हुए और इनकी पैदाइश हुई थी दरियाबाद, जिला पड़ता है बाराबंकी। 38 नंबर सवाल, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कितने अखबारात निकाले? 2, 3, 4, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जो अखबारात निकाले थे, एक का नाम है सच और दूसरे का नाम है सिद्क और तीसरे का नाम है सिद्क़े जदीद। तो ये तीनों अखबार अब्दुल माजिद दरियाबादी ने निकाले थे। तो 38 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, डॉक्टर आबिद हुसैन को पर्दे गफलत से शोहरत मिली, सिनफी एतबार से पर्दे गफलत ड्रामा है, अफसाना है, नाविल है, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर सवाल, तो दोस्तों पर्दे गफलत जो है ड्रामा है डॉक्टर आबिद हुसैन का,
اور اسی ڈرامہ کو لکھنے کی وجہ سے جی ان کو کیا ملی؟ شہرت و مقبولیت عطا ہوئی۔ 40 نمبر سوال ہے، ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تلاش ہند، تلاش خود نوشت، تلاش حق، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 40 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو دوستو ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی جو خود نوشت ہے مائی ایکسپریمنٹ وتھ ٹروتھ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا تلاش حق کے نام سے۔ کس نام سے کیا تھا؟ تلاش حق کے نام سے۔ تو سی آپشن ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جبکہ تلاش ہند جو دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، ان کی خود نوشت ہے ڈسکوری آف انڈیا، ڈسکوری آف انڈیا، اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا تلاش ہند کے نام سے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، ڈاکٹر عابد حسین کو علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے کس اعزاز سے نوازا؟ غالب ایوارڈ، پدم بھوشن، ساہتیہ اکادمی، یا ایک سے زائد، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو دوستو کل ہی پڑھا تھا، علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے ان کو پدم بھوشن کے اعزاز سے، پدم بھوشن کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ 42 نمبر سوال، مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے پر کن کو ساہتیہ اکادمی انعام ملا؟ عبد الماجد دریابادی، ڈاکٹر عابد حسین، خواجہ غلام السیدین۔ 42واں سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو خواجہ غلام السیدین کو، خواجہ غلام السیدین کو آندھی میں چراغ پر ساہتیہ اکادمی انعام ملا تھا، اس وجہ سے 42 کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 43واں سوال آپ کی اسکرین پر، خواجہ غلام السیدین کو ساہتیہ اکادمی انعام کے علاوہ کون سا انعام ملا؟ پدم بھوشن، غالب ایوارڈ، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپشن میں قاعدے سے تو ساہتیہ اکادمی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ساہتیہ اکادمی انعام آلریڈی سوال میں آ گیا ہے، تو ساہتیہ اکادمی انعام کے علاوہ ہے، تو ساہتیہ اکادمی انعام کا تذکرہ یہاں آپشن میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیٹ کر دیا گیا ہے، کیا کیجیے گا؟ تو پدم بھوشن کا ایوارڈ ان کو ملا ہے، 43 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 44واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، شان الحق حقی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ شان الحق حقی جو پیدا ہوئے تھے سن 1912 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1912 میں دہلی میں شان الحق حقی پیدا ہوئے تھے، اور ان کا تعلق جو تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور پیدا ہوئے تھے سن 1912 میں، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال ہوا تھا 2005 میں، اور انتقال ہوا تھا کینیڈا میں۔ شان الحق حقی کا انتقال کینیڈا میں ہوا تھا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر ہے، شان الحق حقی کی تصنیف نقطۂ راست صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ، ڈراموں کا مجموعہ، تنقیدی مضامین کا مجموعہ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ نے جواب دیکھ ہی لیا ہے۔ 45 نمبر سوال ہے، آج کے کلاس کا آخری سوال ہے نا؟ آپ نے دیکھا کہ 45 کا سی آپشن آلریڈی لگا ہوا ہے، تو شان الحق حقی کی جو تصنیف ہے یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، سی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب آپ کے کوئی سوالات ہیں کمنٹ باکس میں کیجیے، انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ باقی کیسا لگا آپ کو آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارا کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے تاکہ آپ جو ہے اپلیکیشن پر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو ہے اپنی تیاریوں میں نکھار پیدا کر سکیں۔ اے آر ڈیجیٹل پر آنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چلے بہت بہت شکریہ آپ سب کے حوصلہ افزائی کے لیے، آپ سب کے پیار کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، بس اتنا ہی کہوں گا، آپ لوگ حوصلہ مت ہاریے، تیاری ایک دم جاری رکھیے، حوصلہ بلند رکھیے، کیونکہ حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ جیتنے کی امید اگر آپ زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن جیت آپ کی یقیناً ہوگی، اور آپ جیت کر کے میدان میں
नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे और आपकी इस कामयाबी पर आपके घर वाले, आपके रिलेशन के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अइज़्ज़ा व अक़रबा और दोस्तों आपके समाज और मुआशरे के जितने भी लोग हैं सब फ़ख्र करेंगे और सबको नाज भी होगा। लेकिन अगर आप नहीं कामयाबी हासिल करेंगे तो दोस्तों आज के ज़माने में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। कामयाब लोगों को, पैसे वाले लोगों को, है ना, सारे लोग पूछते हैं। नाकाम लोगों को, जॉबलेस लोगों को दुनिया नहीं पूछती है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मुस्तक़बिल की फ़िक्र कीजिए, वक्त को ज़ाय मत कीजिए। तैयारी, अगर आप मोबाइल देखना, न्यूज़ देखना, मूवी देखना, सीरियल देखना, है ना, ये सब तो ज़िंदगी भर आप करते ही रहेंगे। अगर आप जॉब लग गया, सरकारी टीचर बन गए तो फिर आपको देखने के मौके ही मौके हैं। लेकिन अभी आपके लिए बहुत अहम वक्त है, मेहनत कीजिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। अरबी में कहा जाता है अल वक्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब, कि सोने से भी ज़्यादा कीमती है वक्त, है ना। सोना चाहे जितना भी महंगा हो, हीरे जवाहरात जितने भी महंगे हों, लेकिन दोस्तों वक्त से ज़्यादा कीमती आज के ज़माने में कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए वक्त को गनीमत जानिए, मेहनत कीजिए, है ना। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, सीरियल, मूवी, है ना, ये सब पर अभी ध्यान मत रखिए। बारकैफ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरी ज़बान से अगर कुछ ज़्यादा निकल गया हो तो माफ़रत चाहता हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार आप लोग खुद हैं। आप लोग चीज़ों को खुद समझते हैं और तैयारी आप लोग कर भी रहे हैं। साथ में दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। यहीं पर आज की क्लास का इख्तिताम हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ।